वेलकम एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं दैट हम लोगों ने दूसरी सीरीज शुरू करी थी एंड दैट वाज रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जहां पे हम लोगों ने दो एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए हमारी स्टोरी लाइन शुरू करी थी या हमारा सीरीज शुरू किया था एंड दैट वाज रिलेटेड टू सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। सो बेसिकली इंडस्ट्रियल सेफ्टी और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी को दोनों को ब्लेंड करके हम लोगों ने जो ये आउटलाइन बना तैयार किया है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन के बारे में। सो बेसिकली ये एलिमेंट बहुत ही यूनिक एलिमेंट है और बहुत ही सधाव एलिमेंट है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक ब्रीफ दे देता हूँ दैट इंडस्ट्रियल सेफ्टी, see industrial safety is all about keeping the industry safe and the person working in the industry safe. So basically the core motto of preparing these videos was to make the videos in Hindi and English, both the languages, so that the understanding is better and it reaches to the maximum amount of people. Correct. So let us try and understand what is today's video is about fire prevention and protection. So we'll be discussing on it, and let us go through what all is included and what all we can do with it. All right. So let us see what is there inside the box. So सबसे पहले we would like to brief you on the introduction to इंडस्ट्रियल सेफ्टी, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर करी है। तो सबसे पहले जो चीजें हमने कवर करी हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो ये जो कोर्स है, द कोर्स सो डिजाइन वाज डिजाइन्ड ऑन द जनरल सेफ्टी एस्पेक्ट्स. So we talked, the very first element is about the statutory requirements, then organizing safety, which was my last video, material handling, electrical safety, fire prevention and protection, machine guarding, work permit, personal protective equipment and housekeeping. See, basically these are the elements of this entire course. Now, I cannot post the entire course on YouTube as a promotion video, but or a learning video, but yes, the bits and pieces of this index is prepared in terms of videos, and then we are putting it up. So now let us try and understand that what is actually industrial safety and what is fire prevention and protection. What all are the things that are covered under fire prevention and protection. So fire prevention and protection के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए, so सबसे पहले let us start with this. Okay, so fire prevention and protection, essential element for combustion. फायर प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन के अंदर हम लोगों को एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बताया जाता है। सो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर कंजम्पशन? 3 एलिमेंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर द कंबशन एंड फॉर इट टू कंटिन्यू। करेक्ट, ये हम लोग सब लोगों को पता है। फायर, एवरीबडी टॉक्स ऑफ एयर और ऑक्सीजन, इग्निशन टेम्परेचर एंड और हीट एंड कंबस्टिबल मटेरियल, बर्नेबल मटेरियल, जो मटेरियल बर्न हो सके। करेक्ट, सो ऑल दीज थिंग्स वी आर very well aware of. Okay, now what is there unique about it? So all 3 elements, the very first thing that you need to understand is all the 3 elements are required to be present simultaneously. Now every element can be in different variables. The combustion to initiate and to continue it. So basically what you need, first all 3 elements should be present. There should be a combustion and to initiate and to continue it. So only then the fire will be there. So this is very important. किसी भी जगह पे अगर आग लगती है तो क्या चीजें जरूरी होती हैं भाई? एयर जरूरी है, एयर ऑक्सीजन जरूरी है, इग्निशन टेम्परेचर जरूरी है या हीट जरूरी है या कंबस्टिबल या बर्नेबल मटेरियल जरूरी है। ये सब तीनों चीजें होनी चाहिए। इनको इनिशिएट करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए और इसे कंटिन्यू करने के लिए कोई चीज, तभी फायर वहां रहेगी, वरना नहीं रहेगी। Hence, to control combustion, what is simply needed is to take such step as to simply have, such steps as are necessary to cut out any one of the 3 elements. Correct? So what you need to do is you have to just cut out any 3 out of the 3, any one element. So this is very simple. Everybody knows it, everybody is aware of it. Yes. So what are the necessary steps to cut off the corresponding element of a triangle? So first, use water to cut off the heat
as a cooling effect. Use foam to cut away the air or oxygen smoothing, जिसे हम लोग कहते हैं, and this is smoothing, and remove the bubble material or formation of large open spaces gaps in storage as fire breaks would invariably put out the fire and stop the combustion. So basically starvation. So अब इसको see I have already explained it in English, now I'll be explaining it in Hindi. So what is there? First, हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप ठंडा कर सके सरफेस को, तो आग बुझ जाएगी. दूसरा, फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि स्मूथरिंग है, जो कि एयर और ऑक्सीजन जो होते हैं उसे कट ऑफ कर देता है. जब आप नेचुरली अगर आप किसी भी चीज को ऊपर फोम से ढक देंगे तो क्या होगा, एयर और ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा एंड देन इट फॉर्म्स एज एन इंसुलेशन लेयर. फ्रिज के अंदर भी जैसे जो पफ जैसा भरा होता है तो उसकी वजह से ठंडक बाहर नहीं आती है, तो आपको यू डोंट फील, सो दैट इज आल्सो पफ, दैट इज फोम, राइट. बट इट इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ इंसुलेशन, वो फ्लेमेबल इंसुलेशन है. लेकिन when it comes to foam, so foam एक इस तरह का स्मूथरिंग इफेक्ट देता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम लोग स्टोरेज करते हैं तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि स्टोरेज जब आप करते हैं तो उसे अलग अलग किया करिए या अलग अलग उसको डिस्टेंस पे रखिए. क्यों? क्योंकि अगर किसी एक में अगर आग लग भी गई तो वहां पे दूसरे में आग ट्रांसफर नहीं होगी. क्यों? क्योंकि आपने उसे डिस्टेंस पे रखा हुआ है. अगर फ्यूल कम होगा एक जगह पे, अगर फ्यूल कम है और वहीं अगर वो जल के अगर खत्म हो जाए तो सिर्फ उतना ही लॉस होगा, वो बाकी में नहीं फैलेगा. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम उसको पाइल्ड अप स्टैकिंग कर देते हैं. सो दैट रिजल्ट्स इनटू, जो नजदीक नजदीक हम लोग स्टैकिंग कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आग जो है एक जगह से दूसरी जगह पे फैलना शुरू होती है. सो इट इज अ वेरी वेरी एंड वी लूज द स्टारवेशन इफेक्ट. सो व्हेन starvation happens, when the combustible material is stored in a very bits and pieces or small portions. So that is how starvation happens. Now we will be talking about the fire protection. So it includes, what does it include? So it includes all measures related to safeguarding human life and prevention of property in the prevention, detecting the extinguishment of fire. So basically when we talk of fire protection, so fire protection हम लोग को बहुत misconceptions हैं. So the very first aspect that you need to consider is when we are talking about fire protection, so what is that? Detection is not protection. No. And putting out the sprinkler system, yeah, ये system, वो system, that is not going to give you protection. That is the protection for the facility or for the livestock, that is for the human safety. So basically जो original concept of hydrant system was first for human protection. क्योंकि क्या होता था, जैसे धुआं जब ज्यादा उठता है, so what it does, it chokes up people, तो लोग बेहोश हो जाते थे. तो आग जो है वो naturally आप फ्यूल की तरह से काम करोगे, so you will also act as a fuel, so the fire will burn you as well. तो वहां पे आप जो ह्यूमन का एग्जिट स्पॉट्स है वहां पे आप पानी का इस्तेमाल करें तो आदमी सेफली वहां से निकल सकता है. पानी वहां पे रहेगा तो ठंडा रहेगा, उन्हें गर्मी लगेगी, यू विल नॉट फील अनकंफर्टेबल. सो दिस इज अगेन द मिसकंसेप्शन कि भाई इक्विपमेंट के ऊपर भी डाल दो. भाई इक्विपमेंट के ऊपर अगर डालोगे तो इक्विपमेंट के ऊपर अगर स्प्रिंकलर अगर आप यूज कर रहे हैं सो इक्विपमेंट तो पूरा स्वाहा हो जाएगा. सो व्हाट यू नीड टू डू इज व्हेन देयर इज एन इक्विपमेंट फायर या अगर छोटा मोटा अगर फायर है तो उसको फायर एक्सटिंग्विशर से आप एक्सटिंग्विश कर सकते हैं. लेकिन ह्यूमन लाइफ सेफ्टी के लिए आप हाइड्रेंट सिस्टम्स या एग्जिट पॉइंट्स पे आप फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगा सकते हैं. सो इसीलिए आप देखिए जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है फायर का वो क्या था, दैट यू मूव आउट ऑफ द एरिया वेरी स्लोली. क्यों? क्योंकि जब पानी गिरा होता है तो वो बहुत स्लिपरी हो जाता है ना, पानी गिरा हुआ बोलते हैं इट्स वेट फ्लोर, मूव स्लोली. सो इसीलिए धीरे धीरे करके आप वहां से मूव कर सकते हैं. व्हेन यू मूव स्लोली in this watery condition you will not feel hot. आपका ऑक्सीजन लेवल बराबर रहेगा, आपका माइंड स्थिर रहेगा. नेचुरली किसी के ऊपर अगर पानी गिरता है तो वो स्थिर हो जाता है. So it will calm you down, right? It will cool you off. So fire will also not affect you much. Correct? So this is what fire protection is all about. So now I'll just explain it in English in a very quick and crisp way. That is, it includes all the measures related to the safeguarding human life and prevention of the property in the prevention, detection and fire extinguishment of fire. It is principally a matter of physical arrangement that hydrant system and fire extinguisher exist. Now the protection is usually understood to include fire
prevention procedures both aim to protect employee property and to continuously of the operations as well. So now what are the provisions that are to be done? So basically फायर प्रिवेंशन के लिए क्या प्रोविजंस हमें करने चाहिए या किस तरह से करने चाहिए, सो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. सो इफेक्टिव फायर लॉस या कंट्रोल प्रोग्राम कैसा होना चाहिए. सो हाउ इफेक्टिव, जब हम लोग बात करते हैं कि भी देयर शुड बी एन इफेक्टिव फायर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कंसीडर. सो व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू कंसीडर. फर्स्ट, टू प्रिवेंट द लाइफ एंड पर्सनल इंजरी. सबसे पहला हमारा आता है टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल इंजरी. दैट कम्स अंडर रेस्क्यू. ये हमारे पास में होना चाहिए. ये इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि हम लाइफ को कैसे बचा सकें और पर्सनल इंजरी को कैसे बचा सकें. सो दिस इज द रेस्क्यू प्लान. इट शुड बी देयर. देन टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी. देन टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड ऑपरेशन. नाउ अगर आप कोई भी सिस्टम लगा रहे हैं तो वो ऑपरेशंस को अगर हिंडर कर रही है या अरे यार ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यार ये अड़ता है बीच में, सो दैट शुड नॉट हैपन. Correct? So whenever you are putting up a fire prevention system, so it should not obstruct. Now this also applies in construction industry. कैसे काफी सारे construction industry के जब interior designers आते हैं तो वो बोलते हैं अरे ये हाइडेंट लाइन आ रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको कैसे छुपाएंगे, ये करें. भाई वो जरूरी है. So what you do is that you build around it in such a way, या फायर प्रिवेंशन सिस्टम हमारा इस तरह का होना चाहिए कि वो चीजों को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे. सो दिस इज व्हाट the main criteria is. Now coming to to prevent the inception of fire. Now inception मतलब to start, जहाँ से शुरू हो रही है. हम सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं that we never identify from where the fire can start. If you have identified from where the fire can start, only then you will be able to do the protection part, na? But we never think on those fronts. So we need to first identify from where it can start, and if it can start from there, so there the fuel amount should be minimal. It is very simple. So the following factors should be given priority for an effective fire protection in the industry. First, fire safe construction, good housekeeping, rubbish disposal, explosive dust free atmosphere, proper storage of raw material, bare minimum storage of hazardous material at shop floor, and a clear-cut fire and safety policy from the beginning itself. And last but not the least, adequate fire safety training at all levels at periodic intervals so that all workers can coordinate in case of any disaster rescue and its ill effect. So basically, the factors that should be considered as or given priority are these factors. So these are the 8 factors that really need to be given priority for. So हम लोग जब किसी भी तरह के फायर प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, सो दीज आर द कोर 8 फैक्टर्स. सो ऑल फायर्स आर नॉट अलाइक. सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हर तरह की आग जो है वो एक जैसी नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, if we put water on petrol, kerosene, flammable or solvent which are lighter than water, the fire will not extinguish but it will spread, as the water being heavier than the substance will go down and the burning substance will splash. In this and in case of electrical fire, if we use water, the user will get shocked as water is a good conductor of electricity. So ये basics हैं. Now when we know, everybody knows these 2 aspects, लेकिन where we commit mistake while designing the system, we always tend to forget the overall base of it. So now I'll just quickly give you a quick wrap on ABCD. So A stands for extinguishing with a cooling effect primarily. B stands for the main principle is to extinguish a fire by smothering or blanketing the fire like oxygen and air supply cut off, like for use of kerosene, petrol, flammable material, ये सब जगह पे you use smoothing effect. So smoothing effect जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ से होता है, like sprinkle foam type of arrangements. So A fire is the water one जो कि cooling effect देती है. Water is the best firefighting media और उससे extinguish बहुत जल्दी हो जाता है. So heavy smoke जो होते हैं वो भी material burns with heavy smoke. So इसको भी बच सकते हैं आप. That is the water usage. Then comes the foam.
Then comes C type of fire, are basically the gas fires, like gas like LPG, acetylene, etc., where the percentage of oxygen is brought down by quickest possible method, and that is carbon dioxide gas. The powder type of extinguisher is used. So यहाँ पे दो C type of fire is like gas based fire. So यहाँ पे आप CO2 गैस और powdered extinguisher का इस्तेमाल कर सकते हैं. Finally the D type fires, जो कि ओरिजिनली वॉज डी टाइप, अब बहुत सारे नाम आ गए हैं, के टाइप फायर, ये वो फटाना फलाना ढिमाका, लेकिन द डी टाइप फायर्स आर बेसिकली सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम लाइक मेटल्स दैट बर्न heavy at heavy temperatures and where special techniques are required to be used. So by this, oxygen supply cut off and other same type of burning metals are coated and thin layers of extinguishing media, thereby avoiding the reignition. So that is the core process. So यहाँ पे भी आप स्मूथरिंग इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. फोम आ गया, या आपका CO2 या ड्राई केमिकल पाउडर आ गया, या फिर ड्राई केमिकल पाउडर बेसिकली इस तरह की फायर्स के लिए बहुत ही कारगर थे. Now, fire extinguishing media कौन से हैं? So first is the dry sand and soil. Second is water kept in buckets. Then asbestos blankets आते थे. Then portable chemical fire extinguishers, that is soda acid, foam, carbon dioxide and dry powder. So ये basically आपके अलग-अलग टाइप के fire extinguishing media. It is recommended that the fire extinguisher have very limited extinguishing media. Hence the proper selection, use and maintenance is very important. So ये बहुत जरूरी है. So अलग-अलग standards हैं जो refer कर सकते हैं. So to extinguish fire. Now detecting the firefighting detectors of firefighting installation. So basically detectors का जो purpose है वो दो ही होते हैं. That is one, to detect the fire, second, and to give the audible alarm. Now firefighting systems जो हैं वो बेसिकली ऑटोमेटेड हो गए हैं. जैसे फ्लडिंग सिस्टम हो गया, गैस बेस्ड फ्लडिंग सिस्टम हो गया, या एक्सटिंग्विशिंग मीडिया हो गया. सो द वेरी फर्स्ट एलिमेंट इज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू एक्चुअली वांट टू प्रोटेक्ट. If you want, whether you want to protect the livestock, whether you want to protect the property, whether you want to protect the instrument, what you want to do. So when you first identify that हमें ये चीज बचानी है या इसे कैसे बचाया जा सकता है, तो उसके बेस पे आप सिस्टम को सिलेक्ट करिए. ऐसा नहीं कि फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम डाल दे, अरे हाइडेंट डाल दो, अरे डिटेक्टर डाल दो. भैया डिटेक्टर और ये सारी चीजें जो हैं ये फायर प्रिवेंशन आपको दे सकती हैं, बट दिस विल नॉट हेल्प यू इन प्रोटेक्टिंग द एक्चुअल लाइवस्टॉक, राइट? And if you're protecting the livestock, then forget about the equipment. So what is the set priority? मतलब आपने जो आपके बोलते हैं ना, सेफ्टी पॉलिसी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए कि भाई आप लोगों को बचाएंगे, वो पहली प्रायोरिटी आती है, या फैसिलिटी में नुकसान नहीं होना चाहिए, वो प्रायोरिटी आती है. नाउ जब हम लोग ये सोचते हैं कि लोगों को अगर हमें बचाना है, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि लोगों को बचना चाहिए. भले ठीक है इक्विपमेंट डैमेज हो जाए, चलेगा, वो तो रिपेयर हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ में आपको ये देखना है कि वो ना हो. तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फायर. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिवेंशन and protection of fire, prevention and protection. See, prevention is like just detecting it. So when we prevent it, तो preventing में हम लोगों ने जो detectors लगा दिए हैं और cut offs लगा लिए हैं, MCB लगी हुई है, ये लगी हुई है, तो ये सारे preventions जो हैं, या passive protection, वो coating layer लगा दिया है. So that is all prevention, fire prevention. But what is protection? Where is protection? So what happens? See, हम लोग बोलते हैं ना कि idle condition. So idle condition is like anytime, anywhere, any given point of time, accidents do happen, right? So you are not certain that when fire can happen. So when you are not certain, so what you need to do is you need to first identify that from where the fire can start, from which all places fire can start, and how we have made sure that even if the fire starts from there, it will be taken care, it will not spread. So ये हमारा कोर फोकस होना चाहिए. So whenever हम जब भी कोई भी किसी भी तरह का सिस्टम अगर डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां पे हमें ये देखना चाहिए कि यार यस, अगर हमने ये पार्ट अगर समझ लिया, या इस चीज को अगर क्लियरली समझ लिया कि फायर प्रोटेक्शन जो है वो कैसे दिया जा सकता है, साथ ही साथ जब लोगों को हमें एरिया से निकालना है
तो एरिया से जब लोगों को निकालना है तो वहां पे अगर आपने स्प्रिंकलर सिस्टम डाला है तो इट विल गिव देम द कूलिंग इफेक्ट, स्मोक जो है वो इस तरफ आ नहीं पाएगा। सो आपने एक अगर वाटर कर्टन जैसा दे दिया या वाटर का स्प्रिंकलर का एक रो दे दिया जहां से फायर दूसरी तरफ नहीं आएगी, सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैरिकेशन। सो वहां पे स्प्रिंकलर जो है वो एक बैरिकेशन जैसा काम कर सकता है और लोग बच सकते हैं। सो जरूरी नहीं है कि वो जो स्प्रिंकलर है वो इक्विपमेंट के ऊपर भी पानी डाले, नहीं, वो इक्विपमेंट से दूर भी पानी डाल सकते हैं और आदमी अगर इस तरफ आ जाए तो उनको इफेक्ट नहीं आएगा, so that you can save lot of lives. And the biggest reason why fire extinguishing system get damaged is because of this, because the design is not around it. हम क्या चाहते हैं, हमारी फैसिलिटी के अराउंड में फायर सिस्टम डालते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए कि हमारे फायर सिस्टम जो है वो फैसिलिटी के अराउंड होने चाहिए। यही प्रिंसिपल होते हैं ताकि आप सी वाई कभी किसी ने ये सोचा है कि फायर का रिंग क्यों बनाते हैं पूरा एक्सटर्नल पेरिफेरी पे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपनी फैसिलिटी सब जगह पे स्कैटर कर देते हैं, कोने से कोने में भी हमारी फैसिलिटी हमने स्टोरेज यूज कर लिया। लेकिन आप ऐसा मत करिए, अगर फायर का रिंग नहीं होगा तो क्या होगा कि आपका जो फैसिलिटी है उससे बाहर तो फायर स्प्रेड होगी ना, क्योंकि आपकी फैसिलिटी तो दीवार के पास भी है। सो हमेशा अपनी फैसिलिटी जो है वो सेंटर में रखिए एंड यू बिल्ड अ फायर रिंग आउटसाइड द पेरिफेरी। जब आप फायर का सिस्टम अगर जैसे ही चालू करेंगे तो आप चारों तरफ से आप फायर को फाइट कर सकते हैं या उसे ठंडा रख सकते हैं या उसे कूलिंग इफेक्ट दे सकते हैं, और जैसे जैसे लोग बाहर आते जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। देन दिस इज व्हाट द कूलिंग इफेक्ट इज ऑल अबाउट, दिस इज अबाउट कीपिंग द लाइफ स्टॉक सेफ। एंड प्लस अगर आपकी फैसिलिटी से बाहर फायर स्प्रेड नहीं होगी, आप उसे कर्टन कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर रिंग अगर कंप्लीट है तो सो दिस इज द रीजन। सो ये क्रक्स में जितना मैं फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन के बारे में बता सकता था, क्योंकि वीडियो शॉर्ट होते हैं और डिटेल में हम चर्चा कर सकते हैं, और हमारे जो फर्दर कोर्सेज जो हैं उसके बारे में जब हम लोग डिटेल ट्रेनिंग्स देते हैं तब इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कशन किया जा सकता है। सो होप अभी तक अगर आपने वीडियो सुना है तो लाइक बटन दब गया होगा, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू मोटिवेट अस। Thank you very much.